Hello guys, welcome back to a new video of Learn with Anirudh, and we are going to continue chapter number 2, components of food. So let's start our video. In chapter 1 we made a list of food items that we eat. We also identify food items eaten in different parts of an India and marked this on its map. A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry and other, maybe rice, sambar and vegetable preparation. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. हमने पहले चैप्टर में जैसे कि देखा अलग अलग फूड आइटम्स हमने बनवाए, हमने उसको आइडेंटिफाई वो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे और हमने वो सब आइडेंटिफाई किया. हम सेकेंड चैप्टर में अब देखेंगे कि अब हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे हमने क्या ग्रेन्स यूज़ किया, उसमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं. ये एक नॉर्मल डिश होती है जो कि हम डेली बेसिस में हम खाते हैं और ये सब के घर में नॉर्मल डेली यूज़ में बन जाती है. Activity 1. Our meal usually have at least one items made up of some kinds of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, butter, milk, pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select the food items you depicted on the map and in chapter 1 and add some more meals to the list and enter this in table 2.1. Table 2.1 some common meals of different regions. इसमें बताया है कि हम अगर हमारे खाने में बहुत सारे ग्रेन्स यूज़ करते हैं, एक ही ग्रेन्स का हमारा खाना कभी भी नहीं बनता. जैसे कि हम क्या खाते हैं लंच में, एक एग्जांपल लेते हैं, हम दाल, रोटी, चावल, तो उसमें कितने सारे ग्रेन्स यूजेस हुई आपको पता है. तो वैसे ही कुछ टेबल में दिए गए हैं और हमें फिलअप करना है. तो हम देखते हैं कि क्या बोला गया है. तो देखते हैं हम. तो हम नेक्स्ट पे आ चुके हैं. ये टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ. टेबल आपको ऐसे भी दिख ही गया होगा, बट यस फिर भी नहीं दिखाओ. तो ये आपका ये है. Sometimes we may not really have all this variety in our meal. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items. Most of the items. There must be some reasons, though, why meal usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? हम जब भी ट्रैवल करते हैं हमें जो भी खाना मिलता है हम वो खा लेते हैं, पर आपको पता है ये सिर्फ हमें बहुत कुछ अफेक्ट कर सकता है हमारी हेल्थ को. और हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभार कि हमें जो मिलता है हम वो खा लेते हैं. देयर मस्ट बी सम रीजंस दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत सारे कारण हैं जिससे मील्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के खाना हम अलग अलग टाइम पे खाते हैं. अलग अलग टाइप के खाना हम अलग अलग टाइप्स में खाते हैं. What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. These ingredients contains of some components that are needed by our body. These components are called nutrition. यानी ये यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हमारा जो खाना होता है वो एक नहीं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनता है और ये इंग्रेडिएंट्स प्लांट से आते हैं या तो फिर एनिमल से आते हैं. दिस इंग्रेडिएंट्स
These components are called nutrients, and the major nutrients in our body are named carbohydrates, protein, fats, vitamins, mineral. In addition, food contains dietary fibers which are also needed by our body. हमारे मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, और उसके साथ साथ हमारे पास डाइटरी फाइबर और रफेज भी है, और वाटर भी बॉडी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी न्यूट्रिशंस होते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन विथ some simple methods. We can test whether the cooked food or a raw ingredients contain one or more of this nutrition. The test for the presence of carbohydrates, protein, fat and simpler to do compared to the test for the other nutrition. Let us do this test to record all your observation in the table 2.2. क्या हम जान सकते हैं कि जो एक फूड जैसे कि मिल्क, उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स सब है? क्या हम जान सकते हैं? हाँ, हम जान सकते हैं. कैसे? तो हमारे पास अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन टेस्ट अवेलेबल है. उसको हम परफॉर्म करके हम जान सकते हैं कि अलग अलग टाइप के क्या क्या होते हैं. For carrying out these tests, you will need a solution of iodine, copper sulfate or caustic soda, or you will need a few test tubes or a dropper. आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको आयोडीन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा, कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा और कुछ टेस्ट ट्यूबर्स चाहिए होंगी. Try this test on a cooked food items as well as the raw material. The table 2.2 shows the way to record are given in this table. You can conduct the text either with this or any to do, not to try to eat or the taste any chemicals. If required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले तो कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट की तरफ से. तो एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स. तो स्टार्च जो होता है वो एक्चुअली ज़्यादातर पोटैटोस और ब्रेड, व्हीट उसमें पाया जाता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भरे पड़े होते हैं. और या तो फिर स्टार्च भी, मतलब हम उसको स्टार्च भी बोलते हैं. In the way of science or in the way of nutrition. So let's start. टेस्ट फॉर स्टार्च. ये बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट होने वाले हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा. आयोडीन सॉल्यूशन आपके पास पड़ा होगा, अगर नहीं पड़ा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दूँगा और आप बना के टेस्ट कर सकते हैं. Put a small quantity of food items or a raw ingredient. Put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of food items. Did it turn blue-black? A blue-black color indicates it contains starch. Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. Enter all your observations in table 2.2. आपको छोटे क्वांटिटीज़ में आपको कुक्ड फूड लेना है या तो फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, उसको रखना है और उसको टेस्टर की मदद या ड्रॉपर की मदद से उसमें 2 से 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन यानी आयोडीन सॉल्यूशन डालनी है. अगर आप उसमें देखते हैं कि वो कलर थोड़ी देर बाद ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि उस फूड में आयोडीन या स्टार्च है.
अगर आपको नहीं पता चलता तो वही फूड में स्टार्च है कि नहीं, आप उसको 2-3 बार परफॉर्म और कर सकते हो और अलग अलग फूड आइटम्स पे परफॉर्म करना और अपना जो ऑब्जर्वेशंस है वो टेबल 2.2 में करना फिलअप। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब हम प्रोटीन में टेस्ट करने जा रहे हैं। प्रोटीन का टेस्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यानी उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, बट हाँ, अगर आपके पास है तो करिएगा और ये सब करते वक्त अपना थोड़ा सावधानी बरतिएगा। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड you want to test is solid, you first need to make a paste of it or a powder. It grind or mash a small quantity of food items. Put some of this clean test tube, add a drop of water and shake this tube. तो टेस्ट फॉर प्रोटीन, तो आपको क्या करना है, पहले कोई फूड आइटम लेना है, अगर वो सॉलिड हुआ तो उसको पहले क्रश कर लेना है, उसके बाद उसका पाउडर बनाना है, उसको पानी डाल के उसको पूरा मैश कर लेना है, उसके बाद उसमें उसका क्लीन ट्यूब यानी क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है धोने वाला, और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है और उसको अच्छे से शेक करना है। Now using a dropper of a solution per sulfate and a 10 drop of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a minute. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates the presence in the food items. Now you can repeat on other food items. यानी अगर आप ड्रॉपर में अगर आप कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा लोगे और उसको थोड़ी देर रखोगे टेस्ट ट्यूब में और फिर उसको डालोगे अंदर, तो आप देखोगे कि जो फूड आइटम होगा वो वायलेट टर्न हो जाएगा। अगर वो वायलेट टर्न हो गया तो उसके अंदर आप प्रोटीन का फाइंड कर सकते हो। आप ये एक्सपेरिमेंट्स रिपीट कीजिएगा अलग अलग फूड आइटम्स पे और देखिएगा किसमें प्रोटीन है और नहीं। फिर आपको मैं जो ये वाली जो टेबल है वो भरना है और यहाँ पे लिखा है कुछ इनने, और आपको बाकी ये सब फिलअप कर देना है फटाफट से। ये आपको होमवर्क रहेगा। टेस्ट फॉर फैट। Take a small quantity of food item, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the wrapper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully against the light. Are you able to see the light faintly? Through this patch, an oily patch on the paper show that the food items contain fat. The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you must rub an item on paper, let the paper dry for a while. Is there any water that may have come from the food? It would dry up after some time. If no oil patch show after this, the food item does not contain fat. मतलब अगर आप एक पेपर लीजिए और उस पर आप एक ऑयली चीज़ को घिसिए, घिसने के बाद आपको एक जो ऑयली पैच दिखाई देगा। अगर वो ऑयली पैच है तो उसके अंदर फूड जो होता है यानी का फैट्स अवेलेबल है, और आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा ताकि पता चले आप किस किस फूड आइटम्स में आप जैसे कि पम्पकिन को आपको कई फूड आइटम्स घिसोगे तो उसमें फ़ैट होगा, पर मतलब उसमें फ़ैट भी नहीं होगा और आपको दिखेगा पैचेस वो आई थिंक वाटर के भी हो सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा पेपर को सूखने दीजिएगा। अगर वो सूख जाता है तो ऑयल पैच नहीं होंगे और नहीं सूखता तो वो ऑयल पैच है। What do this test show? Are fat, protein and starch present in all food items that you tested? Does the food items contain more than one nutrition? Do you find any item that does not contain any of these nutritions? We tested food items for 3 nutrition: carbohydrates, protein and fats. There are also other nutrition like vitamin, mineral that are present in different food items. Why do we need all these nutritions?
यानी इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपने जितने भी टेस्ट किए उसमें सारे फैट प्रोटीन और स्टार्च के, उसमें सारे के सारे जो जो भी फूड आइटम्स आपने लिए वो सारे के सारे में सारे न्यूट्रिशन थे, वो क्या सारे के सारे एक जैसे थे या किसी में कोई भी न्यूट्रिशन थे ही नहीं। और हमने कितने टेस्ट किए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, और उसमें से उसके अलावा जो डिफरेंट न्यूट्रिशंस है वो है विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड, यानी वो हमारे फूड में अवेलेबल है। और हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए ये भी हमें पूछा गया है। तो ये था मतलब टेस्ट करने का हमारा मतलब, ये सब आप टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट जल्दी एक न्यू वीडियो लेके, पार्ट 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी। तो हम पार्ट 2 लेके जल्दी आपके साथ आएंगे और गेट रेडी फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन ऑफ स्टैंडर्ड 7th। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। और आपको बता दूँ एक न्यूज़ के लिए, 6th मैं इस न्यूज़ बता रहा हूँ कि अब 6th की आई थिंक वीडियोज़ आनी बहुत कम हो जाएगी, ये चैप्टर की लास्ट होगी और उसके बाद हम न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट करेंगे विद न्यू टीचर्स। और उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारे एकेडमिक सेशन और उसमें हम इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, सोशल साइंस कराएंगे। सोशल साइंस GSB बोर्ड से आएगी, तो आप देख लीजिएगा, न्यू एकेडमिक सेशन जल्दी आने वाला है। तो आपको मैं न्यू वीडियो में मिलूँगा। इसी के साथ गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।